بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ سال کے آغاز میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں، کچھ ایسی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں برکت نہیں رہتی۔ ہر انسان ان 3 غلطیوں کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ اگر اس کے اندر یہ غلطیاں اور یہ برائیاں ہیں تو ان 3 برائیوں کو فوری طور پر دور کرنے کی کوشش کرے، ورنہ پھر انسان ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے کہ گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں رہتی۔ اگر آمدنی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آپ گھر میں برکت نہیں تو پھر اس آمدنی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تو کسی کو شبہ ہے کہ اس کے کام میں برکت موجود نہیں ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے فعل پر، اپنے کاموں پر، کیا اس سے یہ کام تو سرزد نہیں ہوتے؟ اگر تو ہوتے ہیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے جس قدر ہو سکتا ہے اس فعل سے زیادہ بچا جائے، تاکہ اللہ پاک ہمارے دیگر کاموں میں، ہمارے گھر میں اپنی برکت کا نزول فرمائیں، اور جب اللہ کی برکت ہمارے کاموں میں، ہماری سرگرمیوں میں شامل ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام جو ہے وہ سیدھا چلا ہوتا جائے گا اور ایک سیدھے راستے پہ انسان آ جائے گا اور ہمیں کم محنت میں زیادہ پھل مل سکے گا۔ تو میری دوستوں، ماؤں، بہنوں، آج ان چند فعل کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا جو ہے اس کی بہت سخت وعید سنائی گئی ہے دین اسلام کے اندر بھی، اور احباب، جھوٹ بولنا ایسا مکروہ فعل ہے جس سے انسان اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیرت کا ایک بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے جبکہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سارے گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں تو فرمائے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو یہ سب نے واقعہ سن رکھا ہے، تو اس نے سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے آہستہ آہستہ دیگر تمام گناہ بھی چھوٹ گئے۔ جھوٹ بولنا ایک ایسا گناہ ہے جو اور گناہ بھی ہمیں اس طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہوں کی طرف بڑھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ جھوٹ بولنا، اردو کا ایک مقولہ بھی بڑا مشہور ہے، بڑا معروف ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ہمیں اور بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت شدید اور سخت گناہ ہے، اور اس کی اسلام میں بہت سخت وعید ہے۔ اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، لعنت الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو احباب، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بلکہ بہت سختی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ ہرگز مت بولیں۔ جھوٹ بولنے سے ایک تو
गुनाह होता है और दूसरा दुनिया और आखिरत में सख्त वईदें हैं। उसके बाद इससे हमारे हर काम में जो भी हम और काम करते हैं उसके अंदर भी बरकत उठ जाती है। और जब हमारी कामों से बरकत उठ जाती है तो हम जितने भी पैसे कमा लें या जितने भी हम जोश व खरोश से काम करें तो उसमें जब बरकत नहीं रहती तो हमें उसका उतना आउटपुट, उतना उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा और ना ही नजर आएगा। तो अब आप कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कि झूठ बोलना खत्म कर दें। अब ये जो नया साल हमारी जिंदगी में आना है, इसमें जो मर्जी हो जाए, जमीन आसमान ऊपर से नीचे हो जाए, आप कभी किसी काम में झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं। चाहे अगले बंदा आपकी सच की वजह से बहुत ज्यादा उदास ही क्यों ना हो, आप सच बोलना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपके दुनियावी ताल्लुकात में भी बिगाड़ आ जाए, थोड़ी परेशानी आपको हो, लेकिन अहबाब दुनियावी ताल्लुकात के आगे अल्लाह का जो फरमान है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें झूठ जैसी लानत से अपने आप को छुड़ा लें। इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें नाज़िल होंगी। जो दूसरा काम है जिससे हमारे रिज्क में बरकत उठ जाती है, वो कहा जाता है कि रिज्क की बेअदबी करना है। जी हाँ, रिज्क की बेअदबी करने से भी हमारे कामों में से और हत्ता के हमारे रिज्क में, माल और दौलत में अल्लाह पाक बरकत उठा लेते हैं। अहबाब, जिस तरह हम रिज्क खाते हैं, हम शादियों की मिसाल लेते हैं। शादियों में रिज्क को बड़ी फरावानी से ज़ाया किया जाता है, खाया कम जाता है, ज़ाया और फेंका ज्यादा जाता है। तो ये सब रिज्क की बेहुरमती, बेअदबी में आता है और अल्लाह की नाशुक्री को जाहिर करता है। तो जब हम रिज्क की बेबरकती करते हैं तो हमारे रिज्क में से, हमारे माल और दौलत में से बरकत को उठा लिया जाता है और उसके बाद फिर हम तरह तरह के वज़ाइफ करते हैं। हम दूसरे वसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम असल जो बुराई की जड़ है उसको नहीं पकड़ते कि असल बुराई की जड़ है रिज्क की बेहुरमती करना। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम रिज्क की बेहुरमती, रिज्क को ज़ाया हरगिज़ मत करें। खाना खाएं, जितना खाना है उतना प्लेट में डालें और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें, ताकि उनसे दूसरों का भला हो, या वो खाना गरीब गुरबा में भी तकसीम होने के काबिल हो। रिज्क की जो बेहुरमती है उसको तर्क कर दें। इंशाअल्लाह जब आप ये काम करेंगे तो अहबाब, आपके काम में अल्लाह पाक, आपके रिज्क में, माल में और आपकी दौलत में अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। तीसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। वो तीसरी कौन सी बुरी आदत है जिसकी वजह से हमारे रिज्क, माल और हमारे घर और हमारे हर काम में से बरकत उठा ली जाती है? अहबाब, वो काम है नमाज से कोताही करना। जी हाँ, नमाज से जो इंसान कोताही करता है, नमाज जो है वो एक बुनियादी नुकन है दीन इस्लाम का, और जब इससे ही कोताही की जाएगी तो फिर हमें अल्लाह से बरकत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह के इतने वाज़े और इतने अच्छे हुक्म को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आंखों की ठंडक को जब हम तर्क कर देंगे तो फिर हमें किसी बरकत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप नमाज कायम कीजिए, जरूर कायम कीजिए। नमाज ही ठंडक है, नमाज ही दिल का, दिमाग का
चैन और सुरूर है। इसके बगैर न आपके दिल को सुकून है, न रातों को सुकून आएगा, न दिन को सुकून आएगा। नमाज जो है इसको ज़रूर कायम कीजिए। नमाज अगर छोड़ेंगे तो इसकी सख्त वईद है, सख्त गुनाह है, और इसके साथ साथ दुनिया और आखिरत में सिर्फ और सिर्फ रसवाई है। नमाज के बगैर एक मुसलमान की जो शख्सियत है उसकी पहचान ही नमाज है। जब नमाज दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाए, अल्लाह को सजदा किया जाए, अपना माथा रगड़ा जाए, पेशानी रगड़ी जाए, तो अहबाब इंसान के अंदर आजिज़ी आती है। इंसान अपनी असल हैसियत को पहचानता है कि मेरी असल हैसियत और मेरी असल औकात क्या है। जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी औकात में, अपनी आजिज़ी में आ जाता है तो अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। अल्लाह ने नमाज को बहुत पसंद फरमाया है। पूरी की पूरी नमाज हमारे लिए रहमत है, दुआ है, फजीलत है, अल्लाह की हम्द व सना है, और नमाज में सिर्फ और सिर्फ हमारा फ़ायदा है, किसी और का नहीं। तो तीसरी जो आखिरी चीज़ है जिससे हमारे मालो दौलत का घर बार में से बरकत उठा ली जाती है, वो है कि जब किसी घर में नमाज की कोताही हो, नमाज ना पढ़ी जा रही हो, तो ऐसे घर में से अल्लाह पाक बरकत को उठा लेते हैं। तो अहबाब कोशिश कीजिए कि ये जो नया साल आ रहा है इसमें अपने आप को नमाज का आदी बनाएं, अपने घर वालों को भी नमाज की तकीन करें, उन्हें भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, ताकि दुनिया और आखिरत आपकी संवर सके, ताकि आपके कामों में बरकत आ सके। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया है, ये जो 3 फेल मैंने आपको बताए हैं जिनको करने से बरकत खत्म हो जाती है, आप कोशिश कीजिए कि इन 3 फेलों को आप इनकी पाबंदी कर सकें, ख्वाह आप नमाज कायम कर सकें और दीगर दूसरे जो फेल हैं उनसे बच सकें। और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपके माल में, आपकी जान में, आपकी दौलत में, आपके घर में, आपके हर काम के अंदर अपनी बरकत शामिल फरमाएगा। और जब मोमिन को अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्जी मिल जाती है तो यकीन कीजिए कि बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ी चोटी को वो सर करने के लिए, सर पर कफन तक बांधने को तैयार हो जाता है।